پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے۔ یہ والا ویڈیو کل سے نیٹ کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اس طرح گولا دائرے میں بادل آ گئے ہیں۔ دیکھنے میں یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور بہت سارے یوٹیوبر نے اس پر ویڈیو بنانا شروع کیا ہے، لیکن وہ سارے لوگ اسے ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہو۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو پچھلی بار بھی ایسا بہت سی مرتبہ ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت وہاں پر نازل ہوتی رہتی ہے، برستی رہتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آپ کو بتا دے کہ کعبہ کے ٹھیک اوپر یعنی کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان میں بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور وہاں 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بیت المعمور کیا ہے، اس ویڈیو میں آگے ہم اسی کے بارے میں زیادہ باتیں کریں گے جس سے آپ کو نالج بڑھ جائے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ آسمان والی ویڈیو دیکھیے جو خانہ کعبہ کے اوپر جو بادل بنے ہوئے ہیں گولا آکار میں، تو آپ اسے سب سے پہلے دیکھیے۔ بادل دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شدید گرمی سے ہماری حالت بری تھی، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بادل دیکھیں کس طرح سے آیا، فل گولائی کے اندر۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ موسم دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی اس وقت ہم لوگ گرمی سے جو ہے نا بہت برا حال تھا، میں آپ کو ویڈیو میں یہ بتا رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے بادل ابھی آسمان پہ آیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن الحمدللہ جتنے بھی حرم شریف کے حدود ہے وہ ایک سائے کے اندر آ گئی ہے، جو میں آپ کو دکھاتا چلوں، آپ دیکھیں غور سے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گول سا ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اگر میں آپ کو غور سے دکھاؤں، بالکل ایک راؤنڈ شیپ بنا ہوا ہے کہ جتنا بھی یہ ایریا ہے صرف اور صرف یہ ابھی سائے کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ مطلب ویڈیو کے دوران ہی آپ نے دیکھا ہے کہ اچانک سے کس طریقے سے سایہ ہے، اور کلاؤڈ آپ دیکھیں، اس جیسا کلاؤڈ آپ نے آج سے نہیں دیکھا ہوگا، الحمدللہ۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اور بہت خوبصورت نظارہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ کعبہ کے آس پاس بیٹھے ہوئے دھوپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر اس طرح بادل کا آ جانا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، ان کے لیے خاص کرم ہے، اس بات سے بھی کوئی انکار والی بات نہیں۔ لیکن ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نظارہ سال میں کئی مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں سورج کے پاس ایک رنگ بنتی ہے اور رنگ کے نیچے بادل آ گئے ہیں، اس لیے یہ نظارہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ کعبہ شریف کے اوپر اس طرح کا نظارہ پہلی بار نظر آیا تو جو نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نظر آیا ہوگا، لیکن کسی نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا یا کسی نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی ہوگی، لیکن اس مرتبہ ویڈیو بنا لی گئی۔ لیکن کچھ بھی ہو، یہ نظارہ بہت خوبصورت ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ کوئی معجزہ ہے۔ تو آج ہم کعبہ شریف کے بالکل ٹھیک اوپر ایک اور کعبہ شریف ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، تو ہم اسی کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ 7ویں آسمان پر بنا ایک مقدس گھر جسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے، اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 70,000 فرشتے اس گھر کے پاس مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا، ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے مطابق تمام حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگوں نے بیت المعمور کا نام تو ضرور سنا ہوگا، لیکن بیت المعمور کی اصل حقیقت کے بارے میں آج تک صرف کچھ ہی لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو کا ٹاپک بیت المعمور کے ہی بارے میں ہوگا کہ بیت المعمور کیا ہے، بیت المعمور کہاں ہے، اس کے علاوہ بیت المعمور اور خانہ کعبہ کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ میرے دوستو، زمین پر خانہ کعبہ اس لیے انسانوں کے لیے جیسے کہ قبلہ کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح فرشتوں کا بھی کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور یہ کس جگہ ہے، یہ فرشتے روزانہ کیا کرنے یہاں پر آتے ہیں، ایسی جانکاری ہم آپ لوگوں کو دینے والے ہیں، جسے سن کر یقیناً آپ لوگ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، زمین پر خانہ کعبہ انسانوں کے لیے قبلہ کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی فرشتے
फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुईदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरतु में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई है उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते उसका तवाफ करते रहते हैं। यह अरसे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम सफीर में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 700 फरिश्ते आते हैं और जो एक बार आता है दोबारा लौटकर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वह आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है, यानी मुकद्दस है। और हर रोज उसमें 7000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाले नबुवत में लिखा है कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ उम्मते महरमा और पिछली उम्मत की ईमान वालों की भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले सफेद वाले सालिहीन हैं और मैंने गुनाहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल्लाह मुकद्दस में अपनी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्ते ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताब उल बहार अनवर में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 5000 साल पहले तकलील किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 7000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार से निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ते एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेते हैं कयामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वह घर खुदा का सूरह अल इमरान की एक आयत है। इबादतगाह बेशक सबसे पहले इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वही है जो मक्का में वाकई है। उसको खैर बरकत दी गई और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बना दिया गया। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरफ मुकद्दस और मरकज हैसियत रखती हो। यह जगह सऊदी अरब में मौजूद वाली हिजाज में वाक़ है। रोजाना हजारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मकाम यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिया। यहाँ हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में यह बात इतिहास में मौजूद है कि यह कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है यह वैसा नहीं था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की जरूरत पड़ती रहती है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबुव्वत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका है। यह वह वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी जंग और अपने दूर अंदेश से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरत अवध को रखकर हर किबले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर हो रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1986 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करने नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए
इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का एक रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वह काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के लिहाफ और सोने के कंगनों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों में हिलाफ से ढका हुआ रहता था। इस रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबियां बनी सायाब खानदान के उस्मान बिन तलहात के रिवायत रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराले अल्फाज की रोशनी में यह चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ए बनी तलहा, तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की हमारी बैतुल मामूर के बारे में वीडियो। और जो काबा के ऊपर जो वायरल वीडियो हो रही है कि काबा के ऊपर बादल आए हुए हैं, गोल तरह से गोल रिंग बन चुकी है और बादल उसमें आए हैं, तो वह नजारा भी हमने आपके साथ शेयर किया। और उनके ऊपर सातवें आसमान पर काबा के ठीक ऊपर बैतुल मामूर है। उसे क्या कहते हैं, उसे किसने बनाया, उसके साथ क्या होता है, वह किसके किबला है, यह सारी चीजें आप लोगों को हमने बताई। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, आपके सामने एक स्क्रीन पर ये वीडियो नजर आ रही है, यह